Hello, my dear students. How are you? I think all of you are well during the COVID-19 pandemic. So, guys, today I am going to start a new topic, and this is the last topic of Unit 2 Energy Auditing and Management, Electrical Engineering IKG PTU Kapurthala. The topic is Energy Audit Instruments. Before going to start this topic, my dear students and my dear colleagues, faculty members, and my seniors, I kindly requested to all of you, please subscribe my channel and share with your students as well as your colleagues to get the advantages of topic wise lectures of syllabus of electrical engineering branch IKG PTU Kapurthala. And after the completion of the topic, I can cover the remaining topics available in other universities like RGPV, RTU Kota, BTU Bikaner, AKTU Lucknow, Gautam Buddha University, Noida, HPTU and Aryabhatta Knowledge University, Bihar. So guys, I always request you, if you want the more knowledge and the conceptual knowledge regarding every topic, you can refer these books written by great scholars and our great gurus and professors. So guys, right now we are already studied the different techniques used in energy auditing and management. But उन सब को करने के लिए we need a energy audit instruments. We need some instrument to manage all these procedures already delivered in previous lectures, energy auditing and management. So guys, generally we have 5 to 6 different instruments that will used by energy auditor or energy manager to audit the entire industry or any places where we require energy audit. So the requirement for an energy audit such as identification and quantification of energy necessitates measurements. These measurements require the use of instruments. उन सारी चीजों को मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ही चाहिए. एंड वी नीड सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो कि उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो दीज इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पोर्टेबल. वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो पोर्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल यानी कि मजबूत होना चाहिए, इजी टू ऑपरेट एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मींस इजी टू यूज हो और ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, हमारे बजट में हो. पता चला कि एनर्जी ऑडिट करने गए और इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट ही आ गया कि जितने एनर्जी ऑडिट करके मैंने सेविंग नहीं की उससे ज्यादा तो उस इंस्ट्रूमेंट को परचेज करने में खर्चा हो गया. ये चीज नहीं होनी चाहिए. The parameters generally monitored during energy audit may include the following. Following things हम सारी चीजों को देखते हैं. तो पहला है basic electrical parameters in AC and DC system. First one is voltage, then current, power factor, active power, apparent power, reactive power, energy consumption, frequency and harmonics. ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग मेजर करेंगे इन सब चीजों को by using a different instrument. And these are the electrical parameters in the alternating current as well as DC current system. So guys, next is parameters of importance other than electrical, such as temperature and heat flow, radiation, air and gas flow, liquid flow, revolution per minute RPM जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर का जो हम लोग चेक करते हैं टेकोमीटर के थ्रू, air velocity, noise and vibration, dust concentration, total dissolved solid TDS जो हम लोग चेक करते हैं, pH, moisture content, relative humidity, flue gases analysis like CO2, O2, CO, SO, NO, combustion efficiency. ये सारी चीजें हम लोग, these are the quantity other than electrical quantity.
तो इन सब चीजों को हम लोग चेक करते हैं। किस चीज से चेक करेंगे वो देखेंगे। हम कुछ मोटे मोटे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप अगर एक एक लिखने लगेंगे तो पता चला कि वो उसी में आपने पूरा एग्जाम अपना निकाल दिया। तो मैं प्रिसाइज वे में बता रहा हूं, आप लोग देखते जाइए। नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो। पर्टिकुलर मटेरियल्स मेरे स्लाइड्स में अवेलेबल रहता है कि यू हैव इट। आपको एक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक। The operating instructions for all instrument must be understood and staff should familiarize themselves with the instrument and their operating prior to actual audit use. Audit use से पहले ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के उस बंदे को पता होना चाहिए जो बंदा इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा ड्यूरिंग एनर्जी ऑडिट। अगर उसको पता ही नहीं है कि इसको कैसे यूज करना है तो उसका क्या मतलब है। इसका सीधा सीधा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो मैंने फेस किया है। अभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ स्मॉल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया पंजाब में, और उसके थ्रू उन्होंने उसको बाय डायरेक्शनल मीटर्स कनेक्ट किए। उन्होंने अपने मीटर की जगह पे उसको रिप्लेस किया। तो जो जूनियर इंजीनियर डाटा, उसको लाइनमैन जो आता था उसकी रीडिंग लेने के लिए, उसको पता ही नहीं कि हाउ द रीडिंग विल कैलकुलेट, रीडिंग कैसे ली जाती है, हाउ विल टेक द रीडिंग इन बाय डायरेक्शनल मीटर, उनको पता ही नहीं। तो अब आप बताइए कि वो बाय डायरेक्शनल मीटर का जब रीडिंग ही उसको नहीं पता तो वो एक्चुअल उस चीज को कैसे बता पाएगा। उसके मन में जो आता था लिख के दे दिया, काम खत्म। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, अदर देन दैट कहीं भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, हाउ इट विल ऑपरेट, हाउ इट रिकॉर्ड द डाटा, और इसको हम कैसे आगे यूज कर सकते हैं, कैसे इस डाटा को एप्लीकेशन में ले सकते हैं, ये सारी चीजें उस स्टाफ को पता होनी चाहिए जो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो these are the instrument for measuring major electrical parameters such as kVA, kW, pf। तो इन सब चीजों के लिए वॉट मीटर्स यूज होते हैं। pf के लिए अलग से पावर फैक्टर मीटर आता है। हर्ट्ज के लिए मतलब फ्रीक्वेंसी मीटर्स अलग से आते हैं। रिएक्टिव पावर मेजर करने के लिए अपने पास अलग से आता है। करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर अलग से आता है। तो इसमें इन एडिशन सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो मेजर हार्मोनिक्स। तो इन सब का आजकल जब से एस्थेटिक जो हमारा सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज है उसका डेवलपमेंट हुआ है, तब से हमारे तरफ से हम लोग जनरली बहुत सारे डिवाइस अब यूज कर रहे हैं, और इन सब का एक कंबाइंड डिवाइस बना देते हैं जिसमें सारे पैरामीटर्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी आजकल ये डिवाइसेज है, जितने भी आप ये पैरामीटर्स देख रहे हैं, चाहे ये केवीए हो या केडब्ल्यू हो या पावर फैक्टर हो या फ्रीक्वेंसी हो, इन सब चीजों के लिए एक अलग से एक सिंगल यूनिट डिवाइस बन गई है जो इन सारे चीजों को मेजर करके हमें डिजिटली फॉर्म में आजकल दे रही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ पर्टिकुलर जो मेन आपको जानना चाहिए उस इक्विपमेंट के बारे में बात करूंगा। तो पहला जो इक्विपमेंट मैंने लिया है वो लिया है मैंने कंबसन एनालाइजर। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज इनबिल्ट केमिकल सेल, मीन्स इसमें बैटरी लगी हुई रहती है, विच मेजर्स वेरियस गैसेस सच एज O2, CO, NOx and SOx. These measurements are made by inserting a probe into the exhaust flue and taking a sample. अब ये जो आप ये probe देख रहे हो, इसको मैं फ्लू गैसेस के अंदर इन करता हूँ, और उससे वो जो हमें प्रॉपर्टी जो भी हमें मेजर करना है, O2 लेवल, CO लेवल, NOx एंड SOx, उसको ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लेता है। ए केयरफुली पोजिशन थर्मोकपल मेजर्स द हाइएस्ट एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। द ड्राफ्ट प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द एग्जॉस्ट फ्लू। उसके प्रेशर और उसके जो सारे कंटेंट है, और ये प्रोब और जो केमिकली इनबिल्ट है सेल, उसके थ्रू ये पूरा का पूरा हमें डिस्प्ले पे इस तरह से रिजल्ट आ जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका है कंबसन एनालाइजर। It's a device which is used to measure the O2 level, CO level, NOx and SOx.
अब नेक्स्ट है आपका फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर्स की क्यों जरूरत पड़ी वो मैं बता रहा हूँ आपको। फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम एनर्जी ऑडिटर लगा रहे हैं, एनर्जी ऑडिट के लिए जा रहे हैं, तो हम इसी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा फ्यूल इनबिल्ट इंजेक्ट कर रहे हैं ये हम लोग एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी मीटर इज डिजाइन टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर, हीटर्स, फर्नेस, इन सब के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इट मेजर ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, ये तीनों चीजें मेजर करता है। फ्रॉम दीज वैल्यू इट कंप्यूट्स कंबशन एफिशिएंसी, जो हम लोग कंबशन कर रहे हैं बॉयलर के अंदर, कंबशन प्रोसेस है, उसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करता है। एक्सेस एयर, जो हम लोग एक्सेस एयर कहीं गलती से नहीं आ रहा हो उसको मेजर करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू, CO2 वैल्यू को मेजर करता है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल गैस, ऑयल एंड सॉलिड फ्यूल्स। मीन्स एक ये जो फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर देख रहे हैं, ये हम लोग तीनों जो हम लोग लिक्विड, गैस और सॉलिड जो हम फ्यूल ले रहे हैं, उस तीनों के केस में ये फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका Pyrite. A hand below pump draws the flue gas sample into the solution inside the pyrites. जो आप ये देख रहे हैं ट्यूब्स इसके अक्रॉस। The chemical reaction changes the liquid volume revealing the amount of gas. मीन्स इसके अंदर जो हम लोग केमिकल है, रिएक्शन जो है वो चेंज कर देता है लिक्विड के वॉल्यूम को, ठीक है, जिससे हमें उस अमाउंट ऑफ गैस का जो है वैल्यू रिवील हो जाता है, मतलब पता चल जाता है अपने को। द Pyrite Classic is a tried and true instrument for measuring oxygen and carbon dioxide. ये ट्रू डिवाइस है फॉर द मेजरिंग ऑफ कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेजर करने के लिए। द Pyrite Classic is available for O2 or CO2 and each gas type of Pyrite is available in multiple range to meet a variety of applications from combustion analysis to incubators to anesthesiology. मीन्स आप जो ये देख रहे हैं इसमें हम लोग एक ही ट्यूब में कनेक्ट करते हैं। अगर हमें O2 मेजर करना है तो हम लोग O2 ट्यूब यूज करेंगे, अगर हमें CO2 मेजर करना है तो हम लोग CO2 ट्यूब यूज करेंगे मेजर करने के लिए। जो इसके अंदर जो गैस की जो लिक्विड की जो वॉल्यूम चेंज होगा उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी उस जो गैस है उसकी प्रॉपर्टी और अमाउंट कितना है वो हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। जनरली टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए हम लोग 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स यूज करते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स जो बॉडी से कॉन्टैक्ट में हो, और दूसरा हम लोग करते हैं कॉन्टैक्टलेस, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर, IR थर्मामीटर। तो कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर का जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें एक प्रोब होता है, एक हमारे पास बाय हैंड डिवाइस है जिसमें हम लोग को डिस्प्ले मेजर होगा, हमारा जो हम लोग मेजर करेंगे वो क्वांटिटी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। So these are thermocouples which measures for flue gas, hot air, hot water temperature by insertion of probe into the stream. उसके फ्लो में अगर हम ये प्रोब को डाल देंगे तो हमें उस फ्लू गैसेस का टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। फॉर सरफेस टेम्परेचर ए लीफ टाइप प्रोब इज यूज्ड विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। जो सरफेस टेम्परेचर है उसमें लीफ टाइप मतलब एक पत्ते की तरह उसका डिवाइस होता है, उसको हम लोग जमीन में टच करते हैं, जो सरफेस का हमें टेम्परेचर मेजर करना हो और हमें उससे उसका टेम्परेचर जो है वो मेजर हो जाता है। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर का प्रिंसिपल। दूसरा आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर आजकल आप लोग वाइडली देख रहे होंगे। ड्यूरिंग कोविड-19 आपने देखा होगा कि बिना टच किए हुए आपके बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप ये डिवाइस मोस्टली सारे भी रश वाले प्लेसेज पे आज की डेट में, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कोई भी ऑफिशियल वर्क प्लेस हो, वहां पे आपको ये डिवाइस आजकल मिल रहा होगा जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स है। दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स measurement which when directed at a heat source directly gives the temperature readout. This instrument is useful for measuring hot spot in furnaces, surface temperature etc. Means अब क्या होता है, जो हम लोग फर्नेस यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जिस रूम में हम लोग फर्नेस यूज करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि उस इलाके में, तो जनरली आजकल आप लोग ये जो डिवाइस है ये देख रहे हैं, ये आपकी डिवाइस है जो जनरली आजकल हम लोग कोविड में
फीवर मेजरमेंट के लिए आप लोग देखते होंगे प्रैक्टिकली यूज हो रहा है। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो है और वो लास्ट आपकी डिवाइस है दो, एक है वाटर फ्लो मीटर एंड सेकेंड है पायलट ट्यूब एंड मोनोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर फ्लो मीटर्स क्या है। वाटर फ्लो मीटर्स में आप लोग देख रहे हैं कि दिस नॉन कॉन्टैक्ट फ्लो मेजरिंग डिवाइस यूजिंग डॉपलर इफेक्ट, जो डॉपलर इफेक्ट होता है, अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल, इस दोनों के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। देयर इज ए ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर विच आर पोजिशनड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पाइप, दोनों पाइप के अपोजिट साइड में लगा रहता है ये। द मीटर डायरेक्टली गिव्स द फ्लो वाटर एंड अदर फ्लूइड फ्लो कैन बी इजिली मेजर्ड विद दिस मीटर। आप ये देख रहे हैं दोनों तरफ लगा हुआ है और इसके चैनल के थ्रू हमारा ये डिवाइस कनेक्ट होता है, ये इसका एडेप्टर है और ये अलग से मीटर है। तो ये जो वर्क करता है दैट विल बी वर्क ऑन डॉपलर इफेक्ट ऑब्लिक अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो हम किसी भी फ्यूल जो इंजेक्टर हमारी ट्यूब्स होती है उसमें हम कहीं पे भी मेजर कर सकते हैं कि क्या फ्लो है फ्यूल का या वाटर का। जिस भी लिक्विड को हम फ्लो करा रहे हैं उसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है दैट इज कॉल्ड वाटर फ्लो मीटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका पायलट ट्यूब एंड मोनोमीटर। एयर वेलोसिटी इन डक्ट्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए पायलट ट्यूब, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े, पायलट ट्यूब एंड इंक्लाइंड मोनोमीटर फॉर फर्दर कैलकुलेशन ऑफ फ्लो। अब कई बार क्या होता है बेटा, जैसे आप देखते हो ना, जैसे उसमें कहीं से एयर इंजेक्ट हो जाता है फ्यूल इंजेक्टर में या वाटर बबल्स में। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि वाटर में जो बीच में एयर कंडेंस्ड हो जाता है, वेपर बबल्स बन जाते हैं, उससे हमारी पूरी की पूरी सिस्टम कभी कभी डैमेज हो सकती है। तो ये जो पीटेड ट्यूब एंड मैनोमीटर है ये हमें एयर वेलोसिटी और डक्ट्स कैन भी अगर मेजर्ड है किसी भी उसमें पीटेड ट्यूब में तो उसको हमें ये मेजर करके देती है कि इसके अंदर इतना इसका फ्लो है ना। तो उस फ्लो को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। या जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा डिवाइस का डायमेंशन। तो जब आप एनर्जी ऑडिटर बन जाएंगे तो आपको ये सारी डिवाइसेस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पता होगा और आप इसको प्रॉपरली कर लेंगे। क्लियर है? तो गाइज द टॉपिक इज कंक्लूडेड नाउ। कुछ हम लोगों ने एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारे एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, आपको क्वेश्चन एक ही आना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आना है कि या तो 8 नंबर में या 4 मार्क्स में। आप देख लीजिए कितना कंटेंट आपको पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का, उस हिसाब से आप कंटेंट डिलीवर करिए अपने आंसर में। और क्वेश्चन एक ही होगा, एक्सप्लेन द एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स इन डिटेल। क्लियर है? या इनुमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, इसी टाइप का क्वेश्चन आना है। सो फाइनली लास्ट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फैकल्टी मेंबर है या मेरे कहीं सीनियर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके अपने स्टूडेंट्स को या अपने कलीग को इसके थ्रू दीजिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू गाइज।